Hello. Yeah, Preji, we can take Mangalachan now. Hello, Kunjan ji. जय जिनेन्द्र सौरभ जी। जय जिनेन्द्र। एक मिनट है सौरभ जी। सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सौरभ जी। In our Sunday class, we are discussing, today we have to discuss on Moksha Marga Prakashak, written by Acharya Kalp Pandit Todumal ji. So we are here discussing on first unit, page number 16, and we have to start today negation of writing false word. So far, Todumal ji has narrated here the purpose of writing Granth, writing this Desh Bhashamay Granth, why he has written here. And he has also presented some logic to authenticate this Granth. And he clearly stated here that this is not my principles. These principles are directly from Sarvagyadev, and I am just writing in regional language only. So this Granth is authentic and the Vani of Sarvagyadev. Then Apni Baat, words about his book, he told that we have got Manushya Paryay, and due to Purv Sanskar, we are studying Jain Dharma. And it is very difficult to understand Mool Granths like Samasar, Panchastikaya, Niyamsar, Labdhisar, Triloksar, Ityadi. That's why he is writing here this regional language Granth to make others understand. In next paragraph, he has taken negation of writing false word. It is very important because Todumalji here is saying that, not saying, here is clarifying that if someone asks that, how we can just accept it as authentic, and how you just can say that there is no intermingling of your words or your thoughts in this Granth. So Todumalji here is clarifying negations of writing false words.
वो हिंदी में से बोलेंगे हम असत्य रचना प्रतिषेध, मतलब वो इस बात को बताने वाले हैं कि यहाँ असत्य वाक्य क्यों नहीं लिखे गए, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं लिखे जा सकते हैं. So we can start. Today we have Adarji. Adarji, have you reached there or you are in India? Yeah, I'm in US now. Okay. हाँ पढ़िए, आदर्श पढ़िए. Someone asked here. Sure. Someone asks here, we have known in this way the tradition, but how could we believe that in this tradition only the right words with their exact meanings were written and were not intermingled with false words? The So it is a answer question. Question it means Mhm. it is a question. Question means if someone asks that we have known in this way that the tradition, okay, it is clarified. You have clarified us that this is the tradition, and from Sarvagadev to Acharya and then you. But how could we believe that in this tradition only the right words with their exact meanings were written and were not intermingled with false words? How can we believe? How can you trust on you or on others that these are right words, right message, everything is right, and were not intermingled anything with false words? So now Todumalji is giving answer here. Others padhiye. Composing of false words is not possible without intense passion, because due to such false composition by which many jeeves may be badly harmed traditionally, and as a consequence of such a great injury, the self will have to go to hellish and nigod form of life. Such a great sinful act is possible only on being empowered by the intensest anger, pride, deceit, and greed. Persons. Greed, passions. But in Jain Okay, religion, such a highly passionate person does not take birth. Okay. So here Todumalji is giving answer of that Shanka, that question. Someone is asking here that it is clear to us the tradition of Granth, but how we can believe that in this tradition only right words are there with exact meaning as written, and but not intermingled with false word. So Todumalji is just giving a very beautiful answer. Composing the false word is not possible without intense passion because due to such false composition by which many jeev may be badly harmed traditionally, and as a consequences of such a great injury, the self will have to go in the hellish and nigod. तो वो ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से असत्य पद रचना कषाय की तीव्रता में हो सकती है, क्योंकि हमें कषाय की तीव्रता नहीं है, हमें नहीं. इस तरह से मोक्ष मार्ग पर जाने वालों की कषाय की तीव्रता नहीं होती है, हमारी नहीं है. मतलब पंडित जी क्लियर कर रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई कषाय की तीव्रता नहीं है, और मुझे भय बहुत ज्यादा है. किसका भय बहुत ज्यादा है? क्योंकि एक तो ऐसा गलत काम ना तीव्र कषाय हुए बिना नहीं हो सकता, और एक तो उस कषाय से ही जीव का बुरा हो, और अगर उस जीव ने वो कषाय पूर्वक असत्य पद लिख दिए ना, तो बोले उससे स्वयं का भी बुरा होता है और आगे भी जीवों का बुरा होता रहता है. इससे महाहिंसा का फल लगता है. मतलब आपने जीव की गति बिगाड़ दी गलत लिख के, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? बोले नरक निगोद आदि में गमन करना पड़े. तो ऐसे जो विपरीत कार्य हैं वो तो कैसे बने कि क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसको ये बहुत तीव्र होते हैं ना, उनको बने. किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है. But Jain religion, such a highly passionate person does not. But Jain religion में तो ऐसा कोई होता ही नहीं है जो कि ये ग्रंथ को लिख रहा है, कोई सही ग्रंथ को लिख रहा है. तो मेनली तो टोडरमल जी खुद का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई इतनी तीव्र कषाय नहीं है कि मैं नरक निगोद का मुझे बहुत भय है, और ऐसी तीव्र कषाय नहीं है. तो वो तो ये बता रहे हैं कि भाई
ये गलत लिखना, शब्दों का गलत मिलाना, अपने मन से राग द्वेष की बात करना तो तीव्र कषाय का फल है, और उसका भी फल ये है कि वो जीव नरक निगोद में जाएगा वो। तो मुझे बहुत भय है। हाँ, ये क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर है? फिर और आगे बताएंगे पंडित जी अभी। सर। जी क्लियर है ये? आज कम लोग क्यों आए? कोई प्रोग्राम है क्या उधर जी? बस छुट्टी चल नहीं, रही ऐसा कुछ नहीं है सौरभ बहुत जी। कम है। अच्छा, जस्ट रूटीन है ना। या सौरभ जी, यहाँ एक क्वेश्चन मुझे पहले आता था, अभी अगेन क्लैरिफाई तो हो गया, बट जो बुक लिखने वाला हो या हु पर्सन हु इज राइटिंग द बुक, if he is not samyak drashti, then you have lot of then there is a, again there is a reason, not a reason, but there is a chances of someone writing aprayojan bhut tattva in the book. Of course there will be chances, but वो जो भी लिख रहा है, ग्रंथ लिख रहा है ना, वो एक्चुअली में कलेक्शन कर रहा है। सपोज दैट उसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, कषाय की मंदता उसकी बहुत ज्यादा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सम्यक तो उसने भले ही अभी प्राप्त ना किया हो, बाकी उसकी इतनी कषाय तो मंद हो चुकी है कि वो उसको प्राप्त करने की कगार पर है। बहुत ज्यादा तीव्र कषाय कोई होगा तो वो सही बात लिख ही नहीं पाएगा, वो तो पूरी बात ही गलत लिखेगा। तो सम्यदृष्टि कंपलसरी नहीं है, सम्यदृष्टि होनी चाहिए भाई। शैवसम ज्ञान किसी का इतना अच्छा हो सकता है ना। अब कई सारे मुनिराज, जैसे हमारे ग्रंथों में वर्णन आया कि कई सारे मुनिराज मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन वो प्रवचन और जिनेन्द्र देव की वाणी के इतनी वर्णन करते हैं कि दूसरे जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो यद्यपि वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वर्णन वो इतनी अच्छी करते हैं कि दूसरे जीवों के परिणाम सुधर जाते हैं और वो सम्यक भी हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ भी है कि कषाय की मंदता रहे और वो अध्ययन किया हो और नरक निगोद का भय बहुत हो तो वो नहीं लिखता। फिर आगे चूंकि यहाँ कहा है, आगे अभी क्लैरिफाई करेंगे कि अगर कोई फिर भी लिख दे तो क्या करें, तो उनने उत्तर देंगे वो कि भाई फिर भी लिख दे तो क्या करें। हाँ कुंदन जी क्लियर? हाँ हाँ सौरभ जी, बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। रोहन जी पढ़िए आप। द फर्स्ट बेसिक प्रिसेप्टर। The first basic preceptor, Tirthankara, Kevali, the omniscient, is free from all passions due to complete annihilation of mood, delusion and attachment, etc. Next originator of Shastras are Gandhars and Acharya, who became of feeble rise of moh karma attachment, have forsaken all sorts of external and internal possessions, hence are extremely dispassionate. Owing to the presence of feeble passion in them, they are found possessed with somewhat proclivity of Shubha Upyog, auspicious thought activity, and no other purpose is found. And his right fated Shavaks, householders, also compose the Shastras. They too are not highly passionate. If they had intense passion, how could they cultivate interest in Jainism, which is the destroyer of all sorts of passion by all means? Or if someone owing to the rise of the preserved faith nourishes the passions by other temporal deeds, he may do so, but by going against Jaina preaching maxims, if he nourishes one's passion, he loses Jain identity. Thus, Okay. ये पढ़ लीजिए, पूरा हो जाएगा, पढ़ लीजिए। Thus, in Jainism, such a highly passionate person is not found, who shall by composing false words spoil others as well as his own lot in his birth and the birth hereafter. देखिए एक बात बहुत कॉमन है, क्लियर है कि जो आसान चीज है और जिसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, उससे कुछ मिलता नहीं है। मतलब लौकिक में भी देखते हैं हम लोग कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है उस जो अपना रिसर्च करके दिमाग लगाते हैं ना, वो वेल्दी बनते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे ही सारी दुनिया जो है वो तो हिंसा की बात बोलती है। जैसे लास्ट टाइम हमारी कितनी अच्छी बात निकली कि वैसे कोई भी फिलॉसफी या रिलीजन एक्सट्रीमिस्ट हो तो बुरा माना जाता है,
लेकिन चूंकि जैन धर्म का तो कोर प्रिंसिपल अहिंसा है, तो अहिंसा में अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इससे तो पूरी दुनिया विदाउट एनी एक्सपेंस सुखी हो जाएगी अगर एक्सट्रीमिस्ट होता है जैन धर्म। तो भाई जैन धर्म तो वेजिटेरियन में एक्सट्रीमिस्ट है, अपरिग्रह में एक्सट्रीमिस्ट है, अचौरी में एक्सट्रीमिस्ट है। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर ऐसा है तो जब जैन दर्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स अहिंसा आदि इतने बढ़िया कषाय की मंदता को करने वाले हैं, तो ये सब रिसर्च के द्वारा समझ में आ सकता है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली में हम लोग वी आर जस्ट क्लैरिफाइंग आवर लॉजिक्स दैट जो ग्रंथ है ना, तो हम सब लोग देखिए मॉडर्न जमाने के लोग, इवन हमारे जो बच्चे हैं वो तो और ज्यादा मॉडर्नाइज है, तो वो कहते हैं आप पढ़ रहे हो इसलिए नहीं, हमें आप लॉजिक क्लैरिफाई करो। तो उसमें होना चाहिए, लॉजिक तो क्लैरिफाई होना चाहिए। तो यहाँ लॉजिक क्लैरिफाई टोडरमल जी जो कर रहे हैं ना, पहला अधिकार में लॉजिक ही क्लैरिफाई कर रहे हैं पूरा, कि आप ग्रंथ पढ़ना चालू तो कर दोगे, लेकिन आपको विश्वास कैसे आएगा कि ये बात सही है? क्योंकि क्या है, जो अनकॉमन बातें हैं ना वो विश्वास लोग करते नहीं है। अब जैसे स्टार्टिंग से हमारी क्लास में, तो स्टार्टिंग से जो कोरोना का प्रोपेगेंडा है ना, हमारी क्लास में डे 1 से चल रहा है कि भाई ये प्रोपेगेंडा है। और प्रेरित जी ने तो इस पर काफी अच्छा काम किया, प्रत्येश जी ने भी अपने व्यू दिए थे, सब लोगों ने व्यू दिए थे कि ये जो है ना पूरा का पूरा फॉल्स है ये। आज वो एक प्रियंका जी ने वीडियो भी डाली, मतलब इंडिया में भी कई लोग बोलने लगे हैं कि ये इट इज बीइंग क्रिएटेड, और इस सारा का सारा जो है ना स्कैंडल टाइप लग रहा है पूरा। ये जब उनकी मर्जी होती है वो हाइक कर देते हैं, जब होता है डाउन कर देते हैं, पैसे वसूल कर लेते हैं। कॉमन पीपल इन्वॉल्व है ना इसमें, कोई रिसर्च करने को तैयार ही नहीं है, लोग डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं। रिसर्च जो करेगा ना उसको ही मिलेगी चीजें। ऐसे ही path of happiness, path of peace, it is the matter of research। हम लोग अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, रिसर्च है हमारी। क्या रिसर्च है कि हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, हम उनकी पहले ऑथेंटिसिटी तो देख लें हम, कि ऑथेंटिक कैसे हैं वो। अगर हमारे मन में उनकी प्रामाणिकता को लेकर शंका रही तो फिर हम उनकी बात ही नहीं मानेंगे। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। हमें अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना है तो पहले हमें उसकी प्रामाणिकता तो पूरी करनी पड़ेगी ना। और अगर आपको उसकी प्रामाणिकता में शंका है फिर तो आप डरते ही रहोगे। जैसे जैसे बता रहा हूँ, मतलब हाँ कुंजन जी आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं सौरभ जी, और एक चीज ये है कि इससे हमें ये भी सीखने मिलता है कि और ग्रंथ भी जब हम चूज करें तो सबसे पहले क्या देखें, राइट? हाँ देखिए, वीतरागता का जो उद्देश्य है ना, वो वीतरागता का उद्देश्य सबसे पहले फुलफिल होना चाहिए। और इसमें पंडित जी ने जो बताया कि भाई बिना कषाय की तीव्रता के विपरीत लिखना नहीं हो सकता, तो हम में तो ऐसी कषाय की तीव्रता नहीं है, क्योंकि हमें तो भय बहुत ज्यादा है काय का। अगर हम गलत लिखेंगे तो हमें तो अपनी गति बिगड़ने का भय बहुत ज्यादा है। हम अगर किसी प्रकार से राग का पोषण करेंगे, द्वेष का पोषण करेंगे, तो हमें तो अपनी गति बिगड़ने का भय बहुत ज्यादा है। तो ये तो पूरा का पूरा जो हमें हो रहा है ना, ये एक्चुअली में हमारे श्रद्धान को सही करने के लिए है ये, कि हम आगे जाके ग्रंथ पढ़े तो कैसे पढ़े। अच्छा, अब हमने अगर गलती इमेज बना रखी हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग तो भी नए नए इंडिया से वहां गए हुए हो, लेकिन मैं उन लोगों की बात बताता हूँ जो यूएस आज से 40-45 साल पहले गए। तो मैं मिला था पिछले साल जब लॉकडाउन खुला था ना, तब कोई यूएस से आया था, तो वो करीब थे 75 ईयर्स के थे, तो वो उनको 50 साल 40-45 साल करीब जाए हुए होगा उनको। तो वो तो चालू हो गए, इंडिया इज ये। मैंने कहा अंकल सुनिए, आप गलत हैं। आप 50-40 साल पहले की बात कर रहे हो। अब इंडिया पूरा बदल गया, आपको आप शायद पता नहीं कहाँ हुआ है, एक आध जगह गए होगे तो आपकी उसी मान्यता का पोषण हो गया। मैंने कहा आप विश्वास कीजिए, आप ये प्रमाण देखिए, वैसा नहीं है ये भारत जो आप सोच रहे थे। आप बहुत बदल चुका है। इंडिया इज डोमिनेटिंग इन मैनी थिंग। तो मुझे क्या समझ में आया कि अगर किसी को प्रामाणिकता पे किसी की शंका है तो उसको कैसे फॉलो करेगा। तो अगर हमें मान लो जैन धर्म के ग्रंथों में की प्रामाणिकता में शंका हो गई तो फिर हम उसको फॉलो कैसे करेंगे। इसलिए पंडित जी यहाँ असत्य पद रचना प्रतिषेध ने लिया है। हाँ अपेल जी कुछ कह रहे थे। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि एक तो जो आपने बताया कि वितरकता का पोषण होना चाहिए अपना, वो नहीं होना चाहिए और वो जो आचार्य संबंधभद्र ने एक सूत्र लिखा है ना, वो नहीं आप्तमीमांसा ग्रंथ, तो उसमें भी उन्होंने काफी
बात लिखी है कि आप तक की प्रमाणिक जो वाणी होती है तो उसमें पूर्वापर विरोध नहीं हो सकता। तो कोई भी शास्त्र पढ़े तो उसमें हमको समझ में आना चाहिए कि पूर्वापर विरोध नहीं होना चाहिए। और आगम से भी कहीं पे भी यानी आचार्यों के रचित जो हमारे ग्रंथ है उनमें भी उससे विपरीत बात हो वैसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आचार्यों की रचित जो वाणी है हमारी वही तो हम जिनवाणी है। और अगर जिनवाणी से विपरीत ही उस ग्रंथ में कुछ लिखा है तो शायद हमारी समझने में कुछ गलती हो रही है, या फिर वो ग्रंथकार करता अगर जो है उन्होंने पूर्वापर विरोध सहित कुछ लिख दिया है तो वो ठीक नहीं होगा। तो ये सब ध्यान रखने लायक बात है। हाँ बराबर बराबर। अब जैसे एक एक अपना ग्रंथ है पंच संग्रह, आचार्य अमित गति ने लिखा है, ठीक है। उसका संपादन और अनुवाद एक पंडित वंशीधर जी हुए हैं सोलापुर वाले, उनने उनने किया है उसका, बहुत अच्छा अनुवाद किया है उनने। तो वो अब उनने पंडित जी ने, वंशीधर जी ने एग्जैक्टली जैसा आचार्य अमित गति ने लिखा है वैसा वैसा उनने वहां कर दिया। तो पहले तो आप ये देखो भाई, वंशीधर जी वहाँ संस्कृत भाषा के ज्ञानी थे, उन्होंने उसका अनुवाद किया, को देख लो। जब हमने देखा कि नहीं, हमने पंडित वंशीधर जी के बारे में पढ़ा है, ही वाज क्वाइट नॉलेजेबल, ग्रेट स्कॉलर, भाषा के नॉलेजेबल भी थे, वो अध्यात्म के भी जानकार थे। अब आप पंचसंग्रह को पढ़ोगे तो आपको विश्वास आएगा। ऐसे पंडित हमें यहाँ और ये सौरभ जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मुझे ही हो रहा है सबको हो रहा है? नहीं सौरभ जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। हेलो। हाँ सौरभ जी। सौरभ जी जी उसके पहले आप जब बोल रहे थे ना तब बीच में ब्रेक हुई तो हमने वो सुना नहीं आपका। अच्छा, हाँ तो मैं तो यही बोल रहा था कि हमारे टोडरमल जी बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब मनोवैज्ञानिक थे पढ़ाने के। वो उनको पता, कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि ये ग्रंथ, जितने ये ग्रंथ है स्पेसिफिक मोक्षमार्ग प्रकाशक की बात करें, ये ऑथेंटिक है और कैसे है, तब तक कोई पढ़ेगा क्यों उसको। और ये वाली बात अप्लाई ना सारे ग्रंथों पर होती है, हमारी जितने सारे पर होती है। तो ये तो सौरभ जी, दिनागम तो ना रिसर्च का विषय है। सौरभ जी एक बात अभी आजकल वर्तमान में थोड़ी देखने में आती है, मैंने नोटिस किया है बहुत सारे ग्रंथों में कि जहां जहां पे ट्रांसलेशन किया हुआ है ना ट्रांसलेटेड ग्रंथों में, तो जनरली तो क्या होता है कि एक तो मूल प्राकृत गाथा होती है अगर प्राकृत का ग्रंथ है तो, फिर उसकी संस्कृत गाथा भी रहती है, और उसके बाद दोनों का हिंदी रहता है, हिंदी अनुवाद रहता है। और हिंदी अनुवाद जो टीका यानी टीका होती है उसका होता है, यानी दोनों का शब्दार्थ और फिर टीका का हिंदी अनुवाद। और उसके बाद नीचे फिर रहता है भावार्थ। तो मूल गाथा और टीका का तो अनुवाद है, ठीक है, वो ठीक तरह से हो जाता है क्योंकि उसमें अगर कोई भाषा के विद्वान है वो ठीक तरह से ही अनुवाद कर लेंगे, जैसा आचार्यों ने लिखा है वैसा ही अनुवाद कर देंगे। फिर मगर क्या होता है कि नीचे भावार्थ रहता है, तो वहां पे जो अनुवादक है वो अपनी ओर से कुछ ज्यादा एक्सप्लेन क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो मैंने कई भी ट्रांसलेटेड ग्रंथों में ऐसा अभी आजकल नोटिस किया है वर्तमान में कि वहां भावार्थ में कुछ पंडित लोग अपनी ओर से कुछ चीजें ऐसी जोड़ देते हैं जो मूल गाथा को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने लायक बात है कि जब हम पढ़ते हैं अगर ट्रांसलेटेड ग्रंथ है तो हमें मूल आचार्य की जो टीका गाथा है और उनकी आचार्यों की जो टीका है उस पर ज्यादा ध्यान दे, नहीं कि भावार्थ पे, क्योंकि भावार्थ में काफी मिक्सचर हो जाता है, मैंने देखा है अपने पर्सनल ओपिनियंस का। हाँ हाँ हाँ, वो भावार्थ लिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी अपन ये देख सकते हैं कि वो सैद्धांतिक विपरीत हो रहा है, कि पूरा जो हो रहा है वो सैद्धांतिक विपरीत है या नहीं है। हाँ सौरभ जी होता है, कि सैद्धांतिक विपरीतता भी देखी है मैंने, बहुत बड़ी विपरीतता देखी है, तो कुछ है एग्जांपल वैसे, ठीक है वो तो हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो वो ही है उसमें कि अच्छा, टोडरमैन की इस चीज का भी आगे आंसर दे रहे हैं वैसे इसमें कि वो मोतियों वाला एग्जाम्पल अभी देंगे अपन को कि किस तरह से
जो नकली मोती उनमें से हटा दिए जाए। तो मैं तो ये बोल रहा था कि जैसे जैसे प्रेरित जी, अपन लोग स्टार्टिंग डे 1 से अपन लोग कोरोना पे हमारी पूरी रिसर्च है और हम अपने रिसर्च करके एकदम कॉन्फिडेंट थे। तो अभी वो एक वीडियो प्रियंका जी ने डाली, इंडिया में भी अभी एक परसों वैक्सीन लगवाई, वो घर आया और उसकी डेथ, ऐसे कई सारे केसेस आ रहे हैं वैक्सीन की डेथ के आ रहे हैं। अब बीमार होने लगे बहुत सारे लोग, है ना, क्योंकि यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड वाइड कैसा बता रहे हैं कि जिनने नहीं लगवाई ना वो बीमार हो रहे हैं, जबकि है इससे उल्टा है, जिनने लगवाई ना वो बीमार हो रहे हैं। और उनको अब धीरे धीरे करके इम्यूनिटी कमजोर हुई, बीमारियां घेरने लगी उनको। तो वो रिसर्च की अपन लोगों ने और अपन लोग देख लो क्लियर थे उसमें। ऐसे जिनागम भी ना ऐसी रिसर्च का विषय है। कोई कॉमन चीज सुनेगा तो अरे बहुत कठिन है जैन धर्म, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, किसने देखा, किसने 3 लोग देखा, किसने भगवान देखे, किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा। तो भैया आप स्टडी तो करो, रिसर्च तो करो, ग्रंथ ऑथेंटिक है कैसे आप देख लो, ये प्रमाण है आपके सामने, देख लो। भगवान महावीर थे, उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में बोला, उन्होंने केवल ज्ञान में देखा उन्होंने। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि वो असत्य रचना जो प्रतिषेध है, तो उसमें तो सौरभ जी फिर से वॉइस नहीं आ रहा है आपका, ब्रेक हो रहा है। तीर्थंकर कि बोले पहले जो, हाँ, जो मूल उपदेशदाता है वो तो तीर्थंकर ही है, जो मूल उपदेशदाता है वो तीर्थंकर है हमारे। और जब तीर्थंकर का कोई रहता है तो वो तो तीर्थंकर तो पूरी तरह से मोह से रहित है, सर्व कषायों से रहित है और मोह से रहित है। So the first basic preceptor Tirthankar Kevali is free from all patience due to the complete annihilation of moksha। मतलब वो ग्रंथ के मूल कर्ता कौन है? तीर्थंकर केवली है। तो वो तो पूरी तरह से जो है सर्व कषायों से रहित ही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि फिर उसके बाद गणधर है, आचार्य हैं, और वो गणधर आचार्य भी मोह के मंद उदय से सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को त्याग के मंद कषाई हुए हैं। मतलब वो मंद कषाई ऐसे नहीं हुए हैं कि समस्त परिग्रह को रखे हुए हैं और हमने यहाँ उनको मंद कषाई कह दिया। वो मंद कषाई ऐसे हुए हैं कि उनने बाह्य और अभ्यंतर, जो गणधर हैं, आचार्य हैं, उनने बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार का परिग्रह उनने त्याग कर दिया। बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार का परिग्रह त्याग कर दिया, तब वो मंद कषाई हुए हैं। तो कोई कह सकता ना कि भाई वो मंद कषाई हुए, इसका क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं ना उनकी भाई जो अहिंसा महाव्रत का पालन करते हो, जो जिनका जीवन पूरी तरह से कषाय रहित हो, क्रोध कषाय ना है, नहीं है उनको, ना उनको मान कषाय है, ना माया कषाय, कोई कषाय नहीं उनको, कषायों से रहित हैं वो। इसलिए हमने कहा कि जो तीर्थंकर केवली तो सर्वथा मोह से रहित हैं, और जो गणधर आचार्य है ना, ये भी महामंद कषाई है, ये इनको कषाय है ही नहीं। कषाय की मंदता आप लोगों को फील भी होती होगी कि जिनागम पढ़ने के पहले आप लोगों के परिणामों में तीव्रता, या हम लोगों के परिणामों में तीव्रता, और अब जिनागम पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे परिणामों में जो मंदता आ रही है ना, दैट इज रिमार्केबल, और हमें खुद भी फील होती है। आकुल व्याकुलता का जो लेवल है वो पहले से कम हो गया है। डिसीजन अब हमारे बहुत फास्ट होते हैं कि अगर इसमें इस तरह से सैद्धांतिक विरुद्ध बात है तो हमें ऐसा नहीं करना, भले वो कोई सी बात हो। सामाजिक अगर हमें व्यवहार बनाना है और वो हमारे सिद्धांत के विरुद्ध जाए तो वो हमें कम। तो हमारे डिसीजन बहुत फास्ट हो गए क्योंकि हमें प्रिंसिपल्स क्लियर है ना हमें। तो यही तो बोलते हैं कषाय की मंदता। तो हमारी तो कोई भी कषाय की मंदता नहीं है, लेकिन जिनने आरंभ और परिग्रह बाहर के सब प्रकार का परिग्रह त्याग कर दिया है, ऐसे आचार्य गणधर ये तो महामंद कषाई हैं। तो बोले मूल तो ग्रंथ लोगों ने लिखे, तीर्थंकर तो उनकी वाणी है वो तो पूरी मोह से रहित है, तो उन्होंने वैसी वाणी बोली है, उन्होंने ज्ञान में देखा है। और उसके बाद आचार्य और आपके गणधर आचार्य और आचार्य, इन लोगों ने लिखी है, बताई है, तो ये लोग तो स्वयं महामंद कषाय।
कषाय में तीव्रता नहीं है। तो तो शुभोपयोग की प्रवृत्ति कभी-कभी पाई जाती है, कोई प्रयोजन नहीं है। और जो श्रद्धानी जो गृहस्थ हैं, बोले वो भी मंद कषाय होते हैं, क्योंकि अगर वो तीव्र कषाय हो ना तो उनकी यहाँ रुचि नहीं हो। जैसे मैं आप लोगों को बोलता, लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि 2 प्रकार का पुण्य का उदय होता है। एक एक साम पुण्य का उदय, जिससे कि हमें धन संपत्ति आदि मिलती है। एक सातिशय पुण्य का उदय, सातिशय पुण्य का उदय भी होना चाहिए, कषाय की मितता भी होना चाहिए और रुचि भी होना चाहिए। नहीं तो आप लोग कैसे पढ़ने आए यहाँ बताइए। मैं हम तो ऐसे कई सारे लोगों को बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन सब लोग क्लास में क्यों नहीं आ पाते? बहुत सिंपल सा रीजन है, पता है? कषायों की तीव्रता में कोई जिनागम नहीं पड़ सकता। तो पंडित जी कह रहे हैं कि जो विद्वानों ने लिखे हैं, बोले वो कषाय की तीव्रता वो भी नहीं है, वो भी मंद कषाय है, क्योंकि तीव्र कषाय में तो इतना अच्छा काम बन ही नहीं सकता, इतना अच्छा काम हो नहीं सकता। कौन सा अच्छा काम हो रहा है? बोले पूरे ग्रंथ में संसार से पार होने की कथा बताई जाएगी, संसार से कैसे पार चला जाए कथा तो वो बताई जाएगी। तो जब संसार से पार होने वाली कथा हेलो हाँ, सौरभ जी गेटिंग भी लास्ट है। सर जी आपकी आवाज कट रही है। हेलो अभी हाँ सौरभ जी। हाँ सौरभ जी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। अभी आ रही है? हेलो नहीं, कट ही रही है सौरभ जी। सर जी कॉल करूं मैं?
हेलो। हाँ सौरभ जी, अब आ रही है आवाज। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ अभी आ रही है। हम्म, हाँ, तो देखिए इसमें वो लॉजिक दे रहे हैं पंडित जी कि तीर्थंकर परमात्मा तो मोह से रहित है। आचार्य और गणधर ये महामंद कषाई हैं। और रही जो विद्वानों ने व्याख्या की, लिखा, तो बोले बिना मंद कषाय के तो उनका इतना अच्छा काम हो ही नहीं था। जैसे मैं आप लोगों की हमेशा तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि आप लोग क्लास में आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपने विचार किया और बटन दबाया और आ गए। बिना मंद कषाय के जनागम को नहीं पढ़ा जा सकता। और वो जो लोग स्कॉलर हैं हमारे, जैसे पंडित आसाधर जी हैं, वंशीधर जी हैं, टोडरमल जी हैं, ये लोग तो दिन रात उसमें इन्वॉल्व थे, पढ़ते थे, और दिन भर उनका जीवन ही एक था। तो जिस जीव की कषायों में तीव्रता होगी वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ लिखेगा क्यों, जो कि हमारे मिथ्यात्व अंधकार को दूर करने के लिए सहायक है। तो वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि वो जो असत रचना है ना, वो नहीं हो सकती, क्योंकि कषाय की मान्यता है। तभी कह रहे हैं इसमें कि भाई एक तो जिन धर्म की जिसमें रुचि हो, तो ऐसी कषाय की तीव्रता नहीं जो देनी पना नहीं रहता। फिर भी आपको अगर मोह के कारण से अपनी वीतरागता के विपरीत, जनागम के विपरीत किसी बात का आपको पोषण करना है तो करो, बाकी उसे लगता है जिन आज्ञा भय करने भंग करने का भय नहीं, उसको ये बता रहे हैं। क्योंकि हमें तो जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत ज्यादा है हमें, और जो ऐसी बात कर रहा है उसको लगता है कि उसे जिन आज्ञा भंग करने का भय नहीं है, और जिन आज्ञा भंग करने का भय हमें बहुत होना चाहिए। तो इन्हें क्लियर किया है। एक तो तीर्थंकर जो है वो तीर्थंकर का तो हमें क्लियर ही है, और जो विद्वान है उनने उनकी भी कषाय मंद है, नहीं तो ऐसे लिखते ही नहीं। फिर भी अगर किसी को अपने मोह के कारण से गलत लिखना हो तो लिखो, तो उसका बुरा ही होगा, वो अगली गति बिगड़ेगी। और अभी भी क्योंकि कषाय की तीव्रता है ना, तो जिनागम तो कषाय की तीव्रता में लिखा नहीं जा सकता। आपने अगर फिर भी कुछ मिला दिया तो अब इसी बात को नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। अभी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइक ऐसा कहा जा सकता है कि अगर कहीं पे भी अगर हमें कुछ डाउट होता है, ये कुछ प्रश्न होता है, या फिर कहीं पे भी कोई डिफरेंसेस ओपिनियन खड़े होते हैं, राइट, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, उसका आंसर ढूंढने के लिए हमें जिनवाणी की सर्व प्रमाण होनी चाहिए। जिनवाणी में जो लिखा है वही सत्य सत्य है, और अगर उससे विपरीत है तो वो असत्य है, ऐसा कह सकते हैं आप। हाँ, अभी इस बात का अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, तो सेम ये यहाँ पे जा रहा है नेक्स्ट। सौरभ जी फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, नहीं कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो बोले अगर फिर भी कोई अगर वो असत्य पद रचना प्रतिषेध हो जाए, मतलब वो असत्य पदों को मिला दे, तो बोले उसका इस पर्याय में और अगले पर्याय में बुरा हो, बोले कुछ होने जाने वाला नहीं है, बोले। यानी अब नेक्स्ट, हमारे लिए सिंपल आंसर है कि अगर कहीं पे भी प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ये ऐसा होता है कि ऐसा होता है, जैन जैन धर्म में क्या होता है, तो हमें सिर्फ जिनवाणी का आधार लेना है, वहां पे जो लिखा है वही सत्य है, और उसके अलावा सत्य नहीं हो सकता अगर वो जिनवाणी है, आचार्यों की रचित वाणी है तो। हाँ हाँ बराबर है। अब देखो यही क्वेश्चन जो है ना आगे अब पढ़ रहे हैं, मतलब आगे क्वेश्चन है ये, तो पढ़िए प्रेरित जी, आप ही पढ़िए क्वेश्चन आंसर ये। If someone so-called Jain under the influence of intense passion mixes false words in Jain Shastras and then his tradition continues, what to do in such a case? Answer. As someone mixes artificial pearls in the ornament of the real pearls, but the shining does not match, so by examining it, the examiner does not get cheated also, except the ignorant ones who gets cheated in the name of real pearls, and his tradition also does not continue. Soon someone starts disapproving the artificial pearls. Similarly, in the Jain Shastras, which are a collection of true words,
someone may intermix false words. The purpose shown in the words of Jain Shastra is of uprooting the passions and of reducing worldly affairs. And the false words which are intermixed by that sinful person serve the purpose of nourishing the passions and accomplishing the worldly affairs. Thus, the purpose does not match, and therefore, after examination, the wise person is not cheated. Uh, the ignorant alone gets cheated by the name of Jain Shastra, and his tradition also does not continue. Rather, someone immediately contradicts the false words. The other aspect is that this such a highly passion, the so-called Jains are found here in this bad time. Many good regions and periods are also there wherein such people are not found. Therefore, should be understood that in Jain Shastra's tradition of false words does not continue. Further, he asked that one may not mix false words out of passions, but since the scripture writer possesses Kshayopsham Gnan, therefore, if due to miscomprehension someone mixes wrong words, then his tradition may continue. Here's a new question. हाँ देखिए, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि क्वेश्चन है कि कोई अगर जैनाभासी तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या होगा। क्वेश्चन रिमार्केबल है, क्योंकि देखिए आजकल का एज अलग है और पहले का टाइम एक अलग था। पहले तो मिलाया ही जा सकता था, क्योंकि संस्कृत वो भी जानते थे, हमारे आचार्यों की भाषा से वो लोग बिल्कुल वैसे की वैसे छंद श्लोक बना सकते थे। तो ऐसा क्वेश्चन किया कि अगर कोई तीव्र जैनाभासी, मतलब वो जैन तो नहीं है, जैनाभासी है, क्योंकि वो कषायों का पोषण करता है और जनागम तो कषायों से रहित होने की बात कहती है। तो अगर कोई तीव्र कषाई जैनाभासी अगर कषाय के वशीभूत होकर और कोई असत्य पद मिला दे तो कैसे मिला दे? बोले वो संस्कृत के स्कॉलर है, तो वो अगर आचार्यों के पदों में हेर फेर कर दे, एडिशन डिलीशन कर दे, तो संभव है, क्योंकि आप लोग तो पहचान ही नहीं पाओगे कि ये मूल आचार्य का नहीं है और ये है, तो फिर कैसे पहचानेंगे? अगर कोई संस्कृत का विद्वान हो, वो जैनाभासी हो और उसने अगर मिला दिया तो हम कैसे पहचाने कि वो असत्य है? तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, मोतियों का उदाहरण दिया कि जैसे जो मोतियों का पारखी होता है, आप उसके सामने सच्चे और झूठे मोती रख दो आप उसको, तो अगर कोई उसके सामने झूठे मोती मिला दे सच्चे मोतियों में, तो मोती का पारखी झूठे मोतियों को हटा देता है और सच्चे मोतियों को अलग कर देता है, झूठे को अलग कर देता है। ऐसे ही हमें पता है कि हम जनागम क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय जनागम? जनागम इज ओनली वीतरागता का पोषक, वीतरागता का पोषक है, जिनदेव की वाणी है, अहिंसा में विश्वास करता है, अपरिग्रह की बात करता है, आत्म कल्याण इसका लक्ष्य है, मोक्ष इसका टारगेट है, कषाय की मंदता इस मार्ग पर चलने वाली सहज होती है। तो कह रहे हैं जिस तरह से कोई सच्चा मोती का पारखी हो, तो यहाँ ये हाँ, तो यहाँ ये वर्ड ध्यान देने लायक है, सच्चा मोती का पारखी। मतलब जो पारखी हो वो मोती का सच्चे पारखी होना चाहिए, मतलब ही इज सो क्वाइट नॉलेजेबल, उसके न्याय का, भाषा का, भावार्थ का, वो उसे इतना परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मोती का पारखी कौन होता है? जिसे उसके बारे में सारी चीजें मालूम हो, ठीक है। तो ऐसे अब ये वाली चीज क्यों आई हुई मोती पारखी? तो इसलिए ऐसे तो रखा दिया जाएगा कि परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए ठा करके पारखी ठगाता भी नहीं। पारखी क्या होता है? अ पर्सन हु इज नॉलेजेबल, जिसको उसके सच्चे मोती के सारे लक्षण पता है, वो कहलाता है पारखी। तो बोले कोई पारखी ठगाएगा नहीं, बोले जो सच्चा मोती का पारखी होगा ना, वो उन सच्चे झूठे मोतियों में से झूठे मोतियों को अलग कर देगा, सच्चे को अलग कर देगा, लेकिन वो पारखी होना चाहिए। तो यहाँ क्यों कहा पारखी होना चाहिए? क्योंकि भाई ऐसे तो फिर कोई भी आ जाएगा, नहीं नहीं मुझे ये छंद सही नहीं लग रहा है और ये तो कोई नहीं मिलाया हुआ, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप पहले पारखी तो बनो आप।
आपकी नजर वैसे पारखी होना चाहिए। मतलब मैं अपनी खुद की घटना बता रहा हूँ, मैं बॉम्बे गया था 4 साल पहले, तो जिनके साथ गया था तो बोले आओ सौरभ जी आपको मैं डायमंड मार्केट ले चलता हूँ, मेरा डायमंड का काम है। तो उनने मुझे 2 पुड़िया दिखाई, तो 2 पुड़िया दिखाई तो उसमें डायमंड थे, छोटे-छोटे डायमंड थे कोई। तो बोले कि ये एक जो कागज की पोटली है छोटी सी, इसकी वैल्यू मान लो 1 CR है, और ये जो पोटली इसकी 10 लाख है। मैंने कहा कैसे, ये तो सेम लग रहे हैं दोनों। मैंने कहा मुझे तो चमक वही लग रही है, फिनिशिंग वही है। बोले नहीं नहीं, ये एक आर्टिफिशियल डायमंड है और एक्चुअल डायमंड है। बोले जिसकी 10 लाख वैल्यू आर्टिफिशियल डायमंड है। मैंने कहा कहाँ दिख रहा है अंतर? बोले आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। मेरा 17 साल से यही काम है, और हमें हीरे में और पत्थर में, हीरे में और कांच में हमें अंतर दूर से देख के बता देते हैं। मतलब हम हाथ में लेंगे और देख के बता देंगे कि ये जो है ये सच्चा हीरा है और ये हीरा ये नकली है ये। तो मैंने कहा कैसे? बोले हम सालों से सैकड़ों लक्षण देख रखे हमने उसके, तो हमें पता चल जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जो चीज मुझे सेम दिख रही है। तो उनने बोला हम पारखी हैं, हम हीरे के पारखी हैं हम। ऐसे ही जो सच्चे झूठे मोती, जो सच्चे झूठे मोतियों का पारखी हो, जिनागम में लगा लें। जो जिनागम का पारखी हो, वो उसमें से वो परंपरा नहीं चलने देता। वो अगर किसी ने कषाय के वशीभूत होकर असत्य पद रचना मिला दी, जैनाभासी था और उसने मिला दी, तो कह रहे वो चलने नहीं देगा बहुत दिन तक। वो परंपरा बहुत दिन तक नहीं चलने देगा, क्योंकि वो पारखी है। वो गलत परंपरा का विरोध करेगा, विरोध मतलब हटा देगा उसको परंपरा, और वो तर्क से बताएगा भाई ये हमारी परंपरा। सौरभ जी, एक प्रश्न होता है यहाँ पे कि अगर हमारी कोई ऐसी मान्यता हो जो बहुत हमने सोच रखा हो कि नहीं यही ये ऐसा सत्य होता है, ये ऐसा है होना चाहिए, और अगर फिर यानी बहुत लंबी टाइम की हो हमारी मान्यता हो, और हमको भी वही, अगर पहले से वही हमको जो सिखाया गया था और वही हम समझते थे, फिर अगर हम जब आगम देखते हो और अगर उसमें हमको आगम में अलग बात आती है, और हर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे आगम देखते हैं, और हर जगह पे फिर हमको वही बात मिलती है जो हमने सोचा था उससे अलग है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमारी मान्यता को फिर आगम के अनुकूल कर लेना चाहिए ना? अब वही बात आती है ना कि हम अभी आगम के कितने जानकार हैं, एक्चुअली बात है ना। अब वो हमारी मान्यता किस बेसिस पे? हमारी मान्यता कुल परंपरा से हो सकती है ना। हाँ, हमारी मान्यता कुल परंपरा से हो सकती है, तो ये वो कुल परंपरा क्या है, वो उसकी जड़ में जाएं। फिर पूरे जनागम में कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, कैसा लिखा हाँ। हुआ है, हम उस पे जाएं। तो दैट इज अनदर रिसर्च काइंड ऑफ जस्ट थिंग, कि उसमें हाँ, मैं पूरा वही वही समझे। बात मतलब कर हम रहा हूँ कि जितने रेफरेंस, जितने भी आगम खोलने अपने खोल ले, और अगर सारे आगम में भी वही बात लिखी है जो हमारी मान्यता से अलग है, जब रिसर्च करते हैं, अगर पहले तो रिसर्च हम ये करेंगे देखें ना, हमारी मान्यता का आधार क्या है। हमारी मान्यता का आधार क्या है? कुल परंपरा है क्या? तो वो कुल परंपरा कहाँ से आई? वो कुल परंपरा चलने का क्या कारण है? तो टोडरमल जी ने क्या ना कि अगर कोई सच्चे शास्त्रों में जैसे कोई मिला दे, क्वेश्चन पूछा ना, और वो परंपरा चलती रहे, तो पंडित जी ने उत्तर दिया हाँ हाँ मिला सकता है। बोले मिला सकता है, और वो ऐसे लगेगा कि एक्चुअल मिला हुआ है, वो उसका ही पार्ट है वो। लेकिन जैसे हीरे का पारखी सच्चे झूठे मोतियों को जानता है, और वो सच्चे और झूठे मोतियों को अलग कर देता है, तो परंपरा चल सकती है, वो ऐसा नहीं है। अब अब देखिए, जैसे जैसे देखिए आपको बताऊं मैं, जैसे जैनियों में विवाह परंपरा में अग्नि के फेरे लगाए लगाए गए। अभी भी लगाते हैं सब लोग, एक कुछ एक्सेप्शनल छोड़ दो कि वो नहीं लगाते, बाकी सब लोग अग्नि के फेरे लगाते हैं। अब किसी को पता ही नहीं है कि भाई वो अग्नि के फेरे जो लगाए जाते हैं, वो तो वैष्णव माइथोलॉजी में है, वो तो कि भाई वो अग्निदेव है उनके, और वो कहते हैं हम अग्निदेव को साक्षी मानकर हम ये आपको पत्नी या पति स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ तो अग्निदेव है ही नहीं। सौरभ जी, वो बात सही, ठीक है, अग्नि देव की वो अलग वस्तु है, बट हवन का उल्लेख हमारे यहाँ भी, हमारे शास्त्रों में भी आता है। तो एक्चुअली अग्नि का उल्लेख देखे तो दीप की परंपरा, जो दीप है, वो तो हमारे शास्त्रों में रत्नकरण श्रावकाचार्य से लेके मूल श्लोकों में ही लिखी हुई है। नहीं नहीं, हाँ, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, दीपक का आया है, आरती का आया है, क्लियर शब्द लिखा हाँ, है आरती का। हाँ, वो उसमें आरती का यहाँ मतलब नहीं है। मैं तो एक ये बता रहा हूँ कि
अब जैनी लोग जिनसे बोलो कि साहब अपने यहाँ अग्नि से शादियां नहीं होती हैं, तो बोलते नहीं नहीं ऐसा कैसे साहब, वो तो साहब देखो हमारी तो परंपरा चली आ रही। ये हमने कहा वो लोग तो क्या परंपरा करते हैं, हिंदू हिंदू विधि से ही शादी करते हैं, तो हिंदू विधि से ही करते हैं तो वो तो अलग ही हो गया। अगर जैन विधि से करते हैं तो जैन विधि में भी अपने में हवन की परंपरा होती है, मगर वो उसका वो मीनिंग नहीं होता कि अग्निदेव है उसकी साक्षी में कर रहे हैं, वहां पे अलग विधि विधान से होती है। बट हवन का तो उल्लेख मैंने देखा है अपने शास्त्रों में। हाँ हाँ बराबर, लेकिन वहां वो जो है ना वो अग्नि का कंसेप्ट है, वो हाँ, हम अग्निदेव अग्निदेव वाला, अग्निदेव वाला, हाँ। तो यहाँ पंडित जी ने कहा कि भाई जैसे सच्चे मोती और हीरे का पदों के अच्छा सौरभ जी, और एक प्रश्न होता है यहाँ पे, और और एक प्रश्न होता है कि अगर मान लो कि हमें पता चला कि कोई श्लोक या कोई किसको मिला दिया है, तो उसको अलग करने की विधि क्या होती है कि हम हमें ऐसे शास्त्रों का प्रकाशन नहीं करना चाहिए, या पठन पाठन जो भी हो, वो श्लोक को अलग कर दिया, वो ग्रंथ को ही अलग कर दिया है, तो वैसे ग्रंथों और वैसे श्लोकों का पठन पाठन और प्रकाशन वो रोक देना चाहिए ना, उसको आगे हमें बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसकी परंपरा आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हाँ उसमें जो मैंने पता किया है वो कैसा होता है कि जैसे सपोज दैट मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको कोई चीज समझ में आई, आप उतने स्कॉलर हो गए, आप उतने पारखी हो गए, और आपको समझ में आई कि ये मुझे लगता है कि ये जो श्लोक है ना मिलाया हुआ है, क्योंकि आचार्य से इस श्लोक की शैली मैच नहीं होती है। थोड़ा बहुत बोले मैं ग्रामर भी जानता हूँ, तो आचार्य के ग्रामर का यूज और इस श्लोक का ग्रामर का यूज दोनों अलग अलग है, कुछ मिलाया हुआ है। तो वो क्या होगा फिर, जो दूसरे स्कॉलर्स है ना उस चीज के जानकार, हमसे ज्यादा या हमारे लेवल के, उनका ओपिनियन लिया जाता है कि देखिए मैंने ऐसा ये पाया है और इस ग्रामर का ये रूल है, इसमें ये मैच नहीं हो रहा, आचार्य की ये वाली भाषा कहीं यूज नहीं हुई जो यहाँ हुई है। तो फिर वो सबके साथ बैठ के ओपिनियन ली जाती है। अगर कोई मुनिराज उस चीज के जानकार हैं तो उनको भी बताया जाए कि मैंने ये चीज समझी है और इसमें ऐसा ऐसा है, आप लोग अपनी ओपिनियन दीजिए। तो हो सकता है हमारे समझने में गलती हो रही हो, या ये हो सकता है कि वो चीज हमने नहीं पकड़ी पहले, वो किसी के पकड़ में ही नहीं आई पहले, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत सारे हैं ना और प्रिंट अभी हुए हैं, तो किसी ने अगर मैन्युस्क्रिप्ट में ओरिजिनल में मिला दी हो, पेज नंबर तो लिखे नहीं थे कोई, तो मिला दी हो तो वो छप गई, प्रिंट हो गई। तो उसमें ये है ऐसी विधि कि भाई वो कंसल्ट करें, कंफर्म है, बाद वैसा किया जा सकता है। तो जिस गलत आदमी ने वो पद मिलाए हैं तो बोले कषायों का करता है और लौकिक कार्यों को साधने का प्रयोजन है, सो प्रयोजन तो मिलता नहीं। मतलब कितना अच्छा सेंटेंस कहा उन्होंने कि जैन शास्त्रों का उद्देश्य संसार को घटाने का है, कषायों को घटाने का है, मोक्ष प्राप्त कराने का है, अहिंसा करने का है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वो पद मिला दे तो पद मतलब हमारा उद्देश्य और वो मैच ही नहीं हो। कैसे मैच नहीं हो कि भाई उसने तो पद मिलाया कषाय का पोषण करने के लिए, उसने लिख दिया प्रसाद खाना चाहिए, मतलब कुछ भी लिख दिया कि भाई हिंसा भी अलाउ है हमारे यहाँ, हिंसा भी कर सकते हैं। जैसे वो लास्ट टाइम बताया था ना अपने प्रीतेश जी ने एग्जाम्पल दिया था वो विवेकानंद वाला, कि वो ले गए वो कि भाई ये सबसे अच्छा व्यक्ति है जो 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 बूचर खाने में जो था ना कसाई, ये सबसे अच्छा व्यक्ति है। क्यों? भले ही ये कसाई है लेकिन ये अपनी माँ के लिए काम कर रहा है। तो ये तुम्हें क्लियर ही नहीं है कंसेप्ट। अनेक बछड़ों की माओं को छीन कर वो अपनी माँ के लिए काम कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी आदमी है? तो ऐसे ही यहाँ पंडित जी ने कहा कि भाई जनागम का उद्देश्य कषायों को घटाने का है, संसार के अभाव कराने का है। लेकिन जो चीज संसार बढ़ाए और कषायों को बढ़ाए और लौकिक कार्यों में प्रवृत्ति कराए, तो बोले वो तो तत्काल पहचान ली जाएगी कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये हमारे आचार्यों ने नहीं कहा, ये तो कुछ गड़बड़ है इसमें। फिर उसकी ऑथेंटिसिटी, हाँ कोई मूर्ख हो तो वो जैन शास्त्र के नाम से ठगा जा सकता है, कोई मूर्ख हो वो जैन शास्त्र के नाम से ठगा जा सकता है, उसकी परंपरा नहीं चलती। शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है।
जल्दी ही कोई विद्वान जो आता है और वो जानकार होता है, उन असत्यात पदों का निषेध करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। एक यहाँ इंदौर में हर साल एक सत्संग होता है ना? तो वो सत्संग राधा स्वामी का होता है, जैन का नहीं होता है ना। सत्संग हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रवचन होता है, क्लास मतलब कक्षा होती है, वो चर्चा होती है, ये होती है हमारे यहाँ तो, सत्संग नहीं होता। तो सत्संग होता है यहाँ राधा स्वामी का। अब उसके ऑर्गेनाइजर भी ना अपने एक पाटनी जी होते हैं, जैन है वो। तो हर साल 50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए जितना भी खर्च होता है वही करते हैं। मैंने पता लगाया कि भाई ऐसा क्यों, भाई जैन समाज के होके और वो, तो पता चला कि एक वो राधा स्वामी ने किताब लिख रखी है जैनियों पे, और उसमें वो जैन प्रिंसिपल्स लिख रहे हैं वो। तो कहते नहीं नहीं देखो अपनी बात बोल रही है, बात तो अपनी बोल रही है। वो मैंने सर्च की तो वो किताब मिल भी गई मुझे, मैंने पढ़ी भी। तो कुछ नहीं किया, उन्होंने कॉपी पेस्ट मार दिया और अपनी बात मिला दी। तो अब जो जैन धर्म के जानकार नहीं थे वो क्या बोल रहे हैं, वो तो देखो अपनी अहिंसा की बात करते हो, शाकाहार की बात करते हैं। तो मैंने कहा शाकाहार जैन धर्म नहीं है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है जैन धर्म का, आचरण कर्तव्य है ये तो जैनी का। मैंने कहा संसार का अभाव करना, वीतरागता प्रकट करना जनागम का उद्देश्य है, और ये तो क्या लिख रहे हैं, तो सत्संग, हमारा संग करो आपका कल्याण हो जाएगा। ये तो इसका तो ये मतलब है सत्संग का, तो हमारा संग करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो वो परंपरा खूब चल रही है। अच्छा, खूब जैन जुड़े, उसके पीछे देखो सीधी सीधी ट्रिक बता देता हूँ मैं। क्या होता है, जैनी लोग पैसे वाले होते हैं, सारे नहीं होते, लेकिन फिर भी ये कहावत है, मिथक है ये, कि जैनी पैसे वाले होते हैं, ये सबको पता है। उन्होंने कहा भाई इन लोगों को अपने हाथ में ले लो, तो अपने पास खूब फ्लो आता रहेगा पैसे का। तो हुआ भी वो। तो इंदौर के पूरे एक ऑर्गेनाइजर, मतलब प्रचार उनका होता है पैसा अपनी समाज का खर्च होता है, वो किसी के समझाने से समझते भी नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे वाले। तो उनका नहीं नहीं वो भी सौरभ जी अच्छी बात बोलते हैं, उनको समझाओ तो वो उनके पास से मैसेज ये आता है, नहीं नहीं सौरभ जी अच्छी बात बोलते हैं, आप सुनना एक बार उनको, वो अच्छी बात बोलते हैं, बिल्कुल अपनी जैन धर्म को ही पालन करते हैं वो। तो मैं कहता हूँ भैया जैन धर्म क्या है पहले आप समझ लो। तो ऐसे ही यहाँ है कि कोई मूर्ख जैनाभासी उसको जैन माने तो माने। कहा ना कि भाई कोई मूर्ख हो जैनाभासी हो तो वो माने तो माने, एक्चुअल तो जो जानता है वो उसको अलग कर देगा जान के। वो जो जानता है, जानकार है, वो उसको जान के अलग कर देगा उसको। जो मूर्ख ही होगा, मतलब मूर्ख होगा ना जो उनकी बातों में फंसेगा। अब जैसे क्या प्रेरित जी, आप तो खैर स्टार्टिंग से बोल रहे हो कि सौरभ जी कोविड की बात को वो ही मानेगा जो मूर्ख होगा, वैक्सीन की बात को। तो देख लो आप सब मान रहे हैं, और सब मान रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आने लगा। जो बैड रिजल्ट आना चालू है वो आना चालू हो गए। ऐसे यहाँ भी है कि भाई जो जानकार नहीं होगा ना वो इसके रिजल्ट को उठाएगा, वो ही मानेगा कि हाँ ये सही बात है। तरह से नहीं चलेगी, कोई जानकार शीघ्र ही जानकार आ जाएगा, और की परंपरा उसकी तीव्र मतलब एक तो काल ऐसा है कि इसमें ऐसे जैनाभासी होती है, काल ऐसा है ना कि भाषी बहुत है, लेकिन जो उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र है जैसे विदेश क्षेत्र आदि है, तो वहां इन सत्याग्रह पदों की परंपरा नहीं चलती। तो जो सही बात है वो सही ही रहती है। वीतरागता का पोषण, कसाई की मान्यता, मोक्ष का टारगेट, ये सही बात है। और इससे विपरीत अगर कोई बात लिखता है तो लिखो, और कोई मूर्ख ही उस बात को मानेगा। इस तरह से पंडित जी ने असत्य पद रचना प्रतिषेध एक ही प्रकरण लिया है, बहुत अच्छा है। और तो ध्यान देके पढ़ेंगे सुनेंगे तो क्लियर होंगे। और हमें जिनवाणी को पढ़ते समय इसकी ऑथेंटिसिटी हमें ख्याल में आएगी कि जिनवाणी ऑथेंटिक क्यों है। क्वेश्चन है कि कोई कषायों से असत्यास्पद ना मिला है, पर ज्ञान है इसलिए हो जाए, उसे असत्यास्पद मिलाए तो उसकी परंपरा चले। मतलब बड़ा बड़ा बारीक क्वेश्चन है कि जो विद्वान है, लिखने वाले सर्वसम ज्ञानी है,
उनने कोई उनके ज्ञान में भी कमी नहीं है और उनका कोई इंटेंशन भी नहीं है गलत बात लिखने का, लेकिन क्षेपसम ज्ञान से हो सकता है कुछ गलत लिखा जाए, उनको ध्यान भी न रहे। कभी कभी क्या होता है हमारे मन में सही बात होती है लेकिन राइटिंग में गलत हो जाती है, तो क्या करें? तो इसका आंसर हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को ये प्रकरण समझ में आया होगा। इसके बाद और पढ़ लीजिए आप लोग क्लास के बाद, तो आप लोगों को खुद ही और क्लैरिफाई हो जाए। हाँ, अर्पित जी आए हैं क्लास में। अर्पित जी। हाँ सौरभ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत टाइम आ रहा है क्लास में, आप रेगुलर आइए। हाँ, अरे संडे शाम को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ट्राई करूंगा एज मच अटेंड करने का। हाँ, ओके, बढ़िया। एक तो आपने चलिए। बहुत अच्छा बताया आज। जी जी। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है, हमें आवाज आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा आपने क्लियर किया कंसेप्ट, बहुत और कुछ बहुत अच्छा समझ में आया। तो ये प्रकरण तो पंडित जी बहुत सोच समझ के लिया, उन्होंने पूरा क्लैरिफाई किया हमें कि आप ग्रंथ को कैसे प्रामाणिक माने ना। तो इस तरह से ये हमारा प्रकरण चल रहा है। अब अगली बार हम नेक्स्ट प्रकरण लेंगे। सौरभ जी, टाइम। लेकिन जी जी। ये 100% सही है क्या कि तीव्र रागी को जिनवाणी पढ़ने का या तो मन नहीं होगा या टाइम नहीं मिलेगा या और कुछ एक्सक्यूज होगा? और नहीं पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा वो, बताइए आप मुझे। कैसे पढ़ेगा? मतलब भाई ऐसे उसकी व्यवहार में वो रागी नहीं हो, व्यवहार में बहुत शांत हो, लेकिन फिर भी उसको मन नहीं हो रहा हो जिनवाणी पढ़ने का, ये समझ में नहीं आ रही बातें, तो क्या बोलेंगे फिर? नहीं, शांत इट डजंट मीन कि उसकी कषाय की मंदता है, उसकी कषाय कहीं और चल रही हो ना, अंदर अंदर तो कषाय चलती है ना लोगों की, सैकड़ों लोगों की चलती है। ओके। कोई क्रोध कषाय हम चल रही हो, उसकी काम कषाय की तीव्रता बहुत ज्यादा हो, लोभ की बहुत ज्यादा तीव्रता हो। जैसे लोग क्योंकि देखने में तो क्रोध की ज्यादा दिखती है, लोभ और मोह की तो अपने को पता नहीं चलता अंदर क्या चल रहा है इंसान के। राइट राइट। हाँ, तो या जैसे अगर पैसे का बहुत मोह होगा तो पूरा दिन दिमाग बिजनेस बिजनेस पैसा पैसे में ही लगेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो लोग बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता जिनवाणी का, मैं पढ़ नहीं पाया। तो क्या होता है, वो वही लोग वही कषाय की वही तीव्रता ही ज्यादा होती है कर वहां रहा पे। है। राइट राइट, मतलब कषाय तो है हमारा तो भी लोग होता है भी ना, रहते हैं। अगर जिस दिन मैं पढ़ नहीं पाता, अगर तो पूरा दिन मेरा ऑफिस में काम में निकल गया, तो वो मेरे लोभ कषाय की तीव्रता तो है वही, और कुछ नहीं है वहाँ पे। राइट राइट, परफेक्ट। यस यस। तो ये पक्का है अर्पित जी कि बिना कषाय की मंदता के कोई जनागम नहीं पढ़ सकता, वो पक्की बात हाँ, मतलब वो है। अपने को दिख नहीं रही है, बातें लगे, लेकिन मन में कुछ और चल रही है सामने वाले के। नहीं, ध्यान देंगे राइट। तो दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सपोज दैट मैं संडे को भी वर्क करने लगूं और पैसे कमाने जाने लगूं और मैं आपकी क्लास ना लूं, तो ये क्लियर है ना कि भाई मुझे धन कमाने की तीव्रता है, धन कमाने की, इसलिए मैं इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। राइट राइट तो वो जिसकी कषाय में तीव्रता होगी वो तो नहीं पड़ेगा, ये कंफर्म है। राइट राइट। हाँ, या तो कोई टीवी देखता रहे उस टाइम पे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आजकल तो एंटरटेनमेंट के इतने सारे। देखते हैं, सोते रहते हैं। आपके तो सुबह है, मतलब मैं दोनों क्लास लेता हूँ तो काफी लोगों का सेम बहाना होता है। जब सुबह में क्लास लेने जाता हूँ इधर इंदौर में, फिजिकल क्लास, तो वहां बोलते हैं अरे अरे सर नींद ही नहीं खुलती है भाई। और अभी भी आपको, आप लोगों के अभी सुबह है तो काफी लोगों की नींद अभी नहीं खुलती होगी। राइट। चलिए हम लोग जिनवाणी से लेते हैं। हाँ, कुंजन जी लीजिए। जिने दीन जमे बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए वंदना सतबार, वंदना सतबार। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।